see what exactly happening in every post office, how many parcels they are delivering, how many saving accounts they are being delivered. So there is an extreme transparency, and every post office is digitally connected with a backup, sir. So 100% has been connected. Now the question number 123, Srimati Priyanka Chaudhary ji. Sir Chaturvedi, sir. Sir, question number 123. Honorable Minister, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji. Answer is laid on the table of the House. Sir. First supplementary, Srimati Priyanka Chaudhary ji. Sir Chaturvedi, Chaturvedi, sorry, Chaturvedi ji. Sir, as long as you didn't say Chopra. I'm sorry. Sir, the tourism minister has given me an answer to my question, and he has very rightly said development of tourism infrastructure and product is primarily undertaken by the state government, UT administration. Yes, absolutely, sir, I appreciate that. But when we push an idea, we also have to ensure that any execution does not lead to any mass-scale displacement. So my first question with regards to that, many of the tourism resorts and hotels across states have been built on tribal land through Benami transactions and without genuine tribal consent. Does the ministry plan to audit all tourism-related land allotments in scheduled areas to verify legality and consent under the relevant law and regulations, sir? माननीय चेयरमैन साहब जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को उत्तर को इस बात को समझा है कि टूरिज्म प्राइमरीली राज्य सरकार का विषय है। ठीक उसी तरह लैंड एंड रेवेन्यू भी जो है वो राज्य सरकार का विषय है। जमीन देना, जमीन का अधिग्रहण करना, जमीन को कन्वर्जन करना, उसके लिए होटल बनाने की अनुमति देना, यह सब राज्य सरकारों के स्तर पर होता है। और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार के किसी अधिकार क्षेत्र के विषय में सीधे जाकर के ऑडिट करना या सर्वे करना, ये भारत सरकार के जो है परव्यू में नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए अगर माननीय सदस्य का कहीं कोई ग्रीवेंस है तो उनको राज्य सरकार को इसके बारे में जो है पर्टिकुलर राज्य सरकार को इसके बारे में लिखना चाहिए। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री प्रियंका चतुर्वेदी जी। So I'm very sure that the government, the tourism ministry at the union level can also mandate or ask them to audit various state governments. I'm sure you can send that notification to them or guidelines to them to audit it. So we cannot escape from responsibility when we promote ideas. And promotion of idea, this particular idea is coming from the union government. Sir, the second question is, showcasing Adivasi traditions as tourist attractions without ensuring dignity, agency or fair compensation risks reducing indigenous cultures to commodities. What steps is the government taking to ensure that tourism does not replicate the very power imbalances that our constitutional safeguards were designed to prevent? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, भारत सरकार का टूरिज्म मंत्रालय जिन स्कीम्स के तहत राज्यों में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हैंड होल्डिंग करता है, प्राइमरीली जैसा मैंने कहा अपने उत्तर में भी कि उन सब के फॉर्मुलेशन, उन सब के डीपीआर बनाना, उन सब को कॉन्सेप्चुलाइज करना, उनका इम्पैक्ट असेसमेंट करना, ये सब राज्य सरकार के स्तर पर होकर के आता है। लेकिन सभी स्कीम्स की जो गाइडलाइन हम बनाते हैं, उन गाइडलाइन में निश्चित रूप से इस बात का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में, न केवल माननीय सदस्य ने क्योंकि ट्राइबल एरिया के लिए उनकी संस्कृति, उनकी इथनिसिटी, उनके ऊपर पड़ने वाले एडवर्स इम्पैक्ट उनकी चिंता की है, मैं उनकी चिंता का सम्मान करते हुए इसके अतिरिक्त भी जो कोई भी स्कीम हम बना राज्य सरकार को डीपीआर सबमिट करने के लिए जिस किसी भी स्कीम के तहत उनको अनुमति प्रदान करते हैं, पहले वो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करें, लोकल कम्युनिटीज के साथ में कंसल्टेशन करें और उनके ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के सकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके वहां पे जो है स्कीम्स को लेकर के आए, उसकी इवैल्यूएशन गाइडलाइंस का उसको प्रमुख प्राथमिक रूप से उसको हिस्सा बनाया जाए। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान रविचंद्र वाडी राजू जी। Policy instruments have been or will be adapted by the ministry to codify the principle of free, prior and informed consent (FPIC) from tribal communities for all tourism projects in scheduled areas, and how is the ministry involving the Gram Sabhas in the project's approval and monitoring process, sir?
Thank you, sir. चेयरमैन साहब, मैं फिर कहूंगा कि अभी ट्राइबल एरिया के लिए जो हमने पहले स्वदेश दर्शन में जितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, उन सारे प्रोजेक्ट्स में भी हमने उस तरह की गाइडलाइन बना करके राज्य सरकारों को पहले भी कहा था। पिछले प्रश्न के उत्तर में जैसा मैंने कहा, ठीक वही न दोहराते हुए मैं कहूंगा कि उस सारी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अभी टूरिज्म मंत्रालय ने ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान पीएम जोगा की स्कीम के तहत ट्राइबल होम स्टेज के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से ट्राइबल लोगों का हैंड होल्डिंग करने के प्रयास किया है। और उसमें 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड, इन 5 स्टेट्स में जहां पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है और उसके साथ साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजना है कि हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो डेप्राइव्ड हैं, जो प्रगति के दौर में पीछे रह गए हैं, उन सबको बराबर लाने के लिए काम करना है। ऐसे आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हैंड होल्डिंग करने के लिए हमने एक योजना बनाई है और उस योजना पर हम हर ट्राइबल फैमिली जो इंटरेस्टेड है उनको क्लस्टर बना करके और 2 जो है नए कक्ष वो बना सकें अपने यहाँ, उसके लिए सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। उस क्लस्टर में एक कम्युनिटी स्पेस ऐसा बने जो वहाँ रहने वाले टूरिस्ट जो हैं कम्युनिटी एक्टिविटी के साथ में एंगेजमेंट कर सकें, उसके लिए हैंड होल्डिंग करते हैं। और अब तक जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए, मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए लाना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हमने स्वदेश दर्शन के तहत विभिन्न राज्यों में स्वीकृत किए थे, उनके प्रभावों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेघालय का सोहरा विलेज, तिराना विलेज, जहाँ पे हमने ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर किया, आज उन पूरे गांवों की आबादी जो है, पूरे के पूरे गांव की आबादी जो है वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ में उनकी एनुअल इनकम जो कृषि के क्षेत्र से होती थी, उसके बजाय कहीं ज्यादा आमदनी जो है उनकी टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से होने लगी है। वैसे भी विश्व भर में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां डिविडेंड्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है, नीचे के स्तर तक जाता है, अलग अलग लोगों के पास में विभक्त होता है। एक टूरिज्म किसी क्षेत्र में, किसी ट्राइबल विलेज में जब बढ़ता है तो वहां जाने वाले लोग, वो टैक्सी ड्राइवर्स भी उससे बेनिफिट होते हैं, वहां कुक्स भी बेनिफिट होते हैं, वहां ग्रोसरी वाले भी बेनिफिट होते हैं, वहां का क्राफ्ट मेकर भी बेनिफिट होता है। उसका प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस दृष्टिकोण से काम हुआ था, बस्तर का दूधामारा गांव जो है उसको यूनेस्को ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में, टूरिस्ट विलेज के रूप में आइडेंटिफाई किया है। बस्तर का ही चित्रकूट गांव है, उसने देश के सर्वश्रेष्ठ विलेज टूरिज्म के लिस्ट में उसने स्थान पाया है। मैं मानता हूं कि उसका प्रतिकूल प्रभाव कहीं हो सकता होगा कि उसके कारण से, ओवर टूरिज्म के कारण से, लेकिन अधिकांशतः इस बात को दृष्टिगत किया गया है कि जो भी प्रभाव होता है वो उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। मैं इसके अतिरिक्त ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिज्म एक्टिविटी जब बढ़ती है तो लोकल क्राफ्ट जो वल्नरेबल है, जो समाप्ति के तौर पर है, अगर मैं मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की बात करूं जो दुनिया में भारत की एक अद्वितीय धरोहर है, उनके वापस रिवीव करने, उनको कंजर्व करने की दिशा में भी जब से उन क्षेत्रों में टूरिज्म बढ़ा है उसमें नई चेतना व्याप्त हुई है और नई जनरेशन उसके साथ में जुड़ने लगी है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में सदन में ये बात कह सकता हूं कि टूरिज्म के चलते हुए निश्चित रूप से लोकल क्राफ्ट, लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल ट्रेडिशंस, लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस और क्यूजीन, वो सब फर्दर वापस रीस्ट्रेंथन होता है। फोर्थ सप्लीमेंट्री Rahim ji. Thank you for this opportunity. To preserve the ecosystem with the active participation of local communities, the government of Kerala has submitted a project proposal for improving community-based eco-tourism in the Parambikulam Tiger Reserve under the Swadesh Darshan 2.0 scheme. Although the proposal was submitted in 2024, sir, no concrete action has been taken so far. What are the reasons for this delay, and is the government prepared to approve the project at the earliest? That's my question. Honorable Minister. Swadesh Darshan, which is mentioned by the honorable member, is under reconsideration and reformulation because the scheme was
aligned with the financial cycle, and the financial cycle is about to over. We are reformulating the scheme. Once it is reformulated, only after that the project proposals from Kerala or any other state which has come and which are lying with us are going to be considered. Fifth supplementary, Shriman S. Silva Ganapathy ji. Chairman, sir, our Honorable Minister has mentioned that in Puducherry, Arikamedu has been considered as coastal circuit and tourism projects are carried over under Sudesh Darshan scheme. Arikamedu is an archaeological site. It is the first harbour site explored in the whole of India. From the year 1945, 5 small-scale explorations have been carried out in that site and confirmed that the heritage remains for at least 2,000 years old. Will the government consider to promote Arikamedu site in Puducherry as one of the heritage tourism center? Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. ये माननीय सदस्य का प्रश्न जो है, प्रश्न क्योंकि ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड था, लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न उससे संबद्ध नहीं है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है कि जो हमारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जहां या हमारी जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनसे रिलेटेड जो पुडुचेरी में जिस तरह की ऐतिहासिक धरोहर है वहां टूरिज्म डेवलपमेंट के स्कीम को लेकर के है। भारत सरकार उस सब के लिए कमिटेड है और जितने रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल होते हैं उस रिसोर्सेज और राज्य सरकार जिस तरह के प्रस्ताव भेजती है उनको स्कीम्स में जितनी फाइनेंसेस अवेलेबल हैं उसके आधार पर उन सब की चिंता करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम निश्चित रूप से सकारात्मक काम दिखाएं। Now question number 1, 2, 4, Dr. Kanimali NVN Somo ji. Thank you, Chairman, sir. Question number 124. Honorable Minister. जी उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। First supplementary, Dr. Kanimali NVN Somo ji. Sir, through you, I would like to ask the Minister. He has given an extensive answer on the pollution. I would like to ask him, the air pollution is one of the biggest problems, which is one of the root cause of severe health issues among the people. I would like to know whether the government has allocated adequate funds for installation of large air purifying systems like the C40, clean air accelerators, smog-free towers, and giant vacuum cleaners in public squares or highly polluted areas in metro cities, and make mandatory installation and use of anti-smog guns and water sprinkling systems for large projects by the government to control the pollution. If so, the details of the fund allocated in the last 4 years. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या